Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we were discussed about WCDMA, and in today's session, we will cover UMTS, that is topic number 4.3. Then learning outcomes. So first is you will able to learn about different components of UMTS. Then you will able to understand the UMTS domain and interfaces. तो UMTS डोमेन कौन से है, उसके कौन से इंटरफेसेस है वो देखेंगे. You will able to know about advantages and disadvantages of UMTS, and finally you will able to know about the different applications of UMTS. So these are the learning outcomes of our today's session. Then main components of UMTS. So this is the components of, that is the block diagram of main components of UMTS. So first component is user equipment, that is UE. Then second component is UTRA network, that is UTRAN, and third is CN, that is core network. तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेन कंपोनेंट्स UMTS में. फिर इसमें दो इंटरफेसेस है, दैट इज UU इंटरफेस एंड सेकंड इज IU इंटरफेस. तो ये सब क्या है इंटरफेस है वो आगे के स्लाइड में देखेंगे. Then the main components of UMTS are, first is UE, that is user equipment, जो अभी हमने देखे फर्स्ट ब्लॉक. Then second block is UTRAN, that is UTRA network, and the third block is CN, that is the core network. So these are the three main components of UMTS. So then the UTRAN, that is UTRA network, includes RNS, that is a radio network subsystems, and UTRAN handles call level mobility. तो UTRAN का फंक्शन क्या हो गया, टू हैंडल द लेवल मोबिलिटी. टू हैंडल द कॉल लेवल मोबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ UTRAN, that is UTRA network, which includes RNS. क्या इंक्लूड होता है RNS. RNS मतलब क्या है, रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम. Then the RNS performs functions such as radio channel ciphering, deciphering, handover control, radio resource management, etc. तो RNS कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और RNS के फंक्शंस क्या होते हैं, तो रेडियो चैनल सिफरिंग करता है, देन रेडियो चैनल डिसिफरिंग भी करता है, देन हैंडओवर कंट्रोल करता है, रेडियो रिसोर्स मैनेज भी करता है. तो ये सभी फंक्शंस हो गए हमारे RNS के, दैट इज रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम के फंक्शंस. Then through the radio interface, that is UU, the UTRAN is connected to the user equipment UE. तो ये सब कनेक्शन दिया है यहाँ पे, दैट इज रेडियो इंटरफेस ये कनेक्ट होता है यूजर इक्विपमेंट से. देन UU इज द इक्विवेलेंट टू द UM इंटरफेस इन GSM. अब ये GSM में जो UM होता है ये इक्विवेलेंट टू UU होता है. तो ये सब आगे देखेंगे इंटरफेसिंग में वक्त. Then the core network, that is CN, includes functions such as gateways to the other networks, inter-system handover, etc. तो ये जो component of UMTS है, that is CN, that is core network, तो इसका function क्या है, gateways to other networks ये हो गया. then second is inter-system handover, तो ये दो function हो गए core network के. Then the communication between CN and UTRAN performs via IU interface. अब जो ब्लॉक डायग्राम में IU दिया था इंटरफेसिंग का, तो वो क्या करता है, जो कम्युनिकेशन जो होता है CN और UTRAN में ये परफॉर्म करता है. किसके थ्रू परफॉर्म होता है, वो जो इंटरफेसिंग दिया है IU ब्लॉक डायग्राम में जो दिया है उसके थ्रू होता है. Then in between UE and UTRAN, if there is no dedicated connection, then CN performs the function of location management. तो बिटवीन UE एंड UTRA इंटरफेस अगर वहाँ पे कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है तो CN, दैट इज कोर नेटवर्क, परफॉर्म करता है. क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लोकेशन मैनेजमेंट का. तो ये हो गया कोर नेटवर्क का फंक्शन जब UE और UTRA में कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता है तब UN परफॉर्म करता है.
नाउ यूएमटीएस डोमेन एंड इंटरफेसेस। अभी यूएमटीएस डोमेन और इंटरफेसेस देखेंगे। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूएमटीएस डोमेन एंड इंटरफेसेस। तो ये हो गया यूजर इक्विपमेंट डोमेन, यहाँ तक यूयू तक ये हो गया यूजर इक्विपमेंट डोमेन। देन थर्ड ब्लॉक से लेके यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन हो गया। तो यूजर इक्विपमेंट डोमेन में क्या है, पहला ब्लॉक यूसिम डोमेन है, देन सेकंड ब्लॉक इज मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन, थर्ड ब्लॉक इज एसेस नेटवर्क डोमेन। और यूसिम डोमेन और मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन के बीच सीयू दिया है इंटरफेसिंग। वैसे ही मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन और एसेस नेटवर्क डोमेन में यूयू इंटरफेस दिया है। तो ये पार्ट हो गया यूजर इक्विपमेंट डोमेन का। देन देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन। इसमें कोर नेटवर्क डोमेन होता है जिसमें दो ब्लॉक्स दिए हैं, सर्विंग नेटवर्क डोमेन फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड इज ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन सेकंड ब्लॉक। उसके बाद इसके साथ इंटरफेस है होम नेटवर्क डोमेन विच इज इंटरफेस बाय ZU। ठीक है, और इन दोनों के बीच फिर से UU इंटरफेस दिया है। तो ये हो गया हमारा UMTS डोमेन और उसका इंटरफेसेस। देन UMTS डोमेन एंड इंटरफेसेस, उसमें अभी UMTS डोमेन्स में दो पॉइंट है, दैट इज फर्स्ट इज यूजर इक्विपमेंट डोमेन एंड सेकंड इज infrastructure domain. So these are the two domain included in UMTS domain. So first is user equipment domain. To a single user, this domain is assigned which includes functions required to access UMTS services. तो user equipment domain का function क्या है, to access the UMTS services for the single user. ये असाइन किया हुआ है सिंगल यूजर के लिए, कौन से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, टू एक्सेस द UMTS सर्विसेज। Then the user equipment domain is again subdivided into mobile equipment domain and USIM, that is user services identity module domain. तो ये जो यूजर इक्विपमेंट डोमेन है ये अगेन सब डिवाइड किए हैं दो डोमेन में, दैट इज मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन एंड यूजर सर्विसेज आइडेंटिटी मॉड्यूल डोमेन। सो फर्स्ट इज मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन। तो मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन में क्या होता है, दैट इज मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन इटसेल्फ इज end service in which functions for user interfaces as well as for radio transmission are located. तो मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन का फंक्शन क्या है, फॉर यूजर इंटरफेसेस एज वेल एज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन आर लोकेटेड। तो यूजर इंटरफेसेस और रेडियो ट्रांसमिशन, दीज आर द टू functions of mobile equipment domain. Then second is USIM. For UMTS, USIM domain contains the SIM which performs tasks such as encryption and authentication of users, and it stores all required user related data for UMTS. तो USIM का फंक्शन क्या है, USIM जो डोमेन है उसमें SIM होता है SIM। वो फंक्शन परफॉर्म कौन से करता है, एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर, और आल्सो इट स्टोर्स ऑल रिक्वायर्ड यूजर रिलेटेड डाटा फॉर UMTS। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ USIM के। देन फॉर एन एनहांस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, USIM कंटेन्स अ माइक्रोप्रोसेसर एंड USIM बिलोंग्स टू सर्विस प्रोवाइडर। तो USIM में क्या होता है, अ माइक्रोप्रोसेसर एंड USIM बिलोंग्स टू सर्विस प्रोवाइडर। Now second domain is infrastructure domain. The infrastructure domain consists of first is access network domain, then second is core network domain. So the access network domain includes RAN, that is radio access networks, and the core network domain includes access network independent functions.
Then the core network domain again divided into serving network domain, then home network domain, and finally transit network domain. Then the second is infrastructure domain. For accessing UMTS service, all the functions used by the user are included in the serving network domain. Then the home network domain performs all home network related functions of a user such as user data lookup. अब जो होम नेटवर्क डोमेन होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? होम नेटवर्क रिलेटेड फंक्शंस, दैट इज यूजर सच एज यूजर डाटा लुकअप, ये फंक्शन करता है. If the serving network and home network cannot contact directly, in that case transit network domain is required. अब कभी कभी क्या होता है कि सर्विस नेटवर्क और होम नेटवर्क ये कांटेक्ट नहीं रहता है, इसका कांटेक्ट नहीं रहता है डायरेक्टली, तो इन दिस केस क्या यूज होता है? ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन इज रिक्वायर्ड. तब हम ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन यूज करते हैं. देन UMTS इंटरफेसेस. सो यहाँ पे इंटरफेसेस दिया है, दैट इज फर्स्ट इज CU, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट बिटवीन USIM एंड मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन, जो हमने देखा ब्लॉक डायग्राम में CU, IU एक्सेट्रा. तो ये हो गया उसका UMTS का इंटरफेसेस पॉइंट. सो सेकंड इज UU, दैट इज रेफरेंस पॉइंट बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन. थर्ड इज IU, दैट इज रेफरेंस पॉइंट बिटवीन SS एंड सर्विंग नेटवर्क डोमेन. फोर्थ इज YU, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट बिटवीन सर्विंग एंड ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन. मतलब जो दो ब्लॉक है उसके दो ब्लॉक के बीच में ये इंटरफेसिंग जो दिया है CU, UU, IU, YU का, तो उसका वो इंटरफेसेस का ये पॉइंट दिया है यहाँ पे. देन फिफ्थ इज ZU, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट बिटवीन सर्विंग एंड होम नेटवर्क डोमेन. नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ UMTS. तो UMTS के एडवांटेजेस देखेंगे तो फर्स्ट इज ब्रॉड ऑफर of services. Then the speed, variety and user friendliness of a service significantly improved compared with GSM. तो स्पीड है, वेराइटी है, यूज़र फ्रेंडलीनेस है सर्विस में, ये इम्प्रूवड है UMTS में एज़ कम्पेयर टू GSM. जैसे GSM में ये जो सर्विसेज है उससे इम्प्रूव सर्विस UMTS में दिया है. देन हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, हाई स्पीड है इसका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो हाईली स्पीडली ट्रांसमिट होता है. देन इम्प्रूवड वॉइस क्वालिटी अच्छी है इसकी. देन सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी जो सर्विस है वो फ्लेक्सिबल है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ UMTS. तो पहला है एक्सपेंसिव इनपुट फीस फॉर 3G सर्विस लाइसेंसेस. तो इसका 3G सर्विस लाइसेंस जो है वो एक्सपेंसिव है, उसकी जो फीस है वो एक्सपेंसिव है. देन इट इज़ चैलेंज टू बिल्ड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3G. अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चैलेंजिंग है बिल्ड करना, तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ UMTS. देन द एक्सपेंस ऑफ 3G फोन्स, 3G फोन्स के लिए भी एक्सपेंस लिए. देन लार्ज सेल फोन्स, जो सेल फोन्स है वो लार्ज लगते हैं, तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ UMTS. देन द एप्लीकेशंस ऑफ UMTS. सो द फास्ट इंटरनेट, देन स्ट्रीमिंग और डाउनलोड, दैट इज़ वीडियो ऑडियो. तो जो फास्ट इंटरनेट होता है उसमें यूज़ होता है, फास्ट इंटरनेट में UMTS यूज़ होता है. देन स्ट्रीमिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए वीडियो ऑडियो उसके लिए भी यूज़ होता है. देन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी UMTS यूज़ में आता है. देन मल्टीमीडिया मैसेजिंग, ईमेल, इसके लिए भी UMTS होता है. देन फाइनली मोबाइल इंटरटेनमेंट्स के लिए भी UMTS यूज़ होता है. नाउ प्रोग्राम आउटकम्स. सो PO1 इज बेसिक नॉलेज. तो आज के सेशन में PO1 मैप होता है. देन PO3 दैट इज इन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं उसका यूज़ एक्सपेरिमेंटेशन में आता है, इसीलिए PO3 भी मैप होता है. देन PO8 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं ये जब हम इंडिविजुअली या फिर टीम में वर्क करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तब उसमें ये सब यूज़ में आता है टॉपिक्स आज के सेशन के. सो PO8 इज मैप. देन PO10 इज
lifelong learning, so PO10 is also mapped. So my dear students, we will summarize our lecture. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखे, कंपोनेंट्स ऑफ UMTS देखे, उसके बाद UMTS डोमेन एंड इंटरफेसेस देखा है, कौन कौन सा डोमेन है, कौन कौन सा इंटरफेस है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ UMTS, ये भी हमने स्टडी किए। देन एप्लीकेशंस क्या है UMTS की, ये हमने लर्न किए। तो ये सब समरी हमने आज के सेशन में कवर की। So my dear students, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next class, we will going to learn about CDMA 2000.